Good morning students, welcome back to standard 9th polynomial chapter. We have learned about how to locate the irrational numbers on the number line. We had also located the other day root 2 on the number line. There is one more irrational number, root 3. Let us learn how to locate root 3 on the number line. Of course, the steps involving the location of the irrational numbers on the number line will remain same, but there is few changes which we have to note down. Let us see how we locate root 3 on the number line. First of all, I told you that for locating the irrational numbers on the number line, you should always know the decimal form of the irrational numbers. Suppose root 2, root 3, root 5, root 7, etc. Today we are locating root 3, so we must know the decimal form of root 3, that is 1.73, which I have written here. Students, please remember 1 to 10 root decimal expansion by heart, so that it will make easy to locate the irrational numbers on the number line. Anyway, let us start with this. First step involving locating the irrational numbers on the number line is, first draw any arbitrary line and give name AB as I have drawn here, A and B. Okay. After doing that, locate any point and name it O, A, C, whatever name you want to give. Suppose I have given here, I have located one point on this number line. You can locate anywhere. It is not fixed that you have to locate in a particular place, but you can locate anywhere on the number line. Suppose I have located here, I have given the name O. Now the important point is that look at the decimal form of the root 3. Decimal form of the root is 1.73. So before decimal number there is 1. So from this O you have to take any one unit, because before decimal point there is 1. आपको कोई एक यूनिट लेना है. डेसिमल पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उतने यूनिट लेना है. हाँ, अब यूनिट आप तय करो. आप सेंटीमीटर ले सकते हो, आप इंचेस भी ले सकते हो, डिपेंडिंग हाउ बिगर द नंबर लाइन या इरेशनल नंबर यू हैव टू शो ऑन द नंबर लाइन, वो आपके ऊपर है. सपोज आप इंच लेते हो तो आप यहाँ पे 1 इंच लीजिए, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के पहले यहाँ 1 है. समझ गए? अगर 2 है तो 2 इंच लेने हैं, 3 होगा तो 3 इंच लेना है. So it depends on what the decimal form of the number line is. That is why this is very important. Now suppose here 1.73, so I am taking 1 inch here. I want to show it bigger ones, that is I am taking 1 inch. Okay. So suppose this is my 1 inch. Suppose this is my 1 inch. मैं यहाँ पे बिगर ही दिखाऊंगा ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई दे, लेकिन आपको रियल इंच लेना है, आपको रियल सेंटीमीटर्स लेना है. जब आप नोटबुक में करो तो आप ओरिजिनल या जेन्यून इंच या सेंटीमीटर्स लेना. ओके. लेकिन मैं यहाँ बड़ा दिखाने के लिए मैंने 4 सेंटीमीटर को 1 इंच बताया है ताकि वो बड़ा दिखे. ठीक है. इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो आपकी लाइन ए बी है उससे परपेंडिकुलर है. सपोज मैंने यहाँ नाम दे दिया सी, क्योंकि बी तो ऑलरेडी यहाँ है. जो नाम दिया है वो मत रिपीट करना, बाकी के कोई भी नाम दे सकते हो. मैंने यहाँ सी दिया. सी से परपेंडिकुलर 1 इंच का एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे. और ये फिक्स है, यहाँ पे आपको 1 इंच का ही करना है. वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, फिर से मैं रिपीट करके बता रहा हूँ. इट शुड बी 1 इंच ओनली. तो मैं फिर से यहाँ पे 1 इंच लोकेट कर रहा हूँ, विच इज़ परपेंडिकुलर. ठीक है. नाउ दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1. आफ्टर डूइंग दैट यू शुड हैव योर राउंडर विथ यू. राउंडर ले लीजिए. राउंडर का पॉइंट आपका ऊपर जाना चाहिए. फिर इसको खींचिए, जहाँ तक आपने ये लाइन यहाँ पे रखी है वहाँ तक जाइए और इसमें छोटा सा एक आर्क दिखा दीजिए. एग्जैक्टली इतना आर्क दिखा दीजिए. आफ्टर डूइंग दैट ये जो पॉइंट है
उसको भी एक नाम दे दीजिए। सपोज़ मैंने नाम दे दिया यहाँ पे सपोज़ एस दे दिया, चलो कोई भी नाम दे सकते हो। फिर ओ एस को ज्वाइन कर दीजिए स्केल से। अब बच्चों जैसे मैंने कि रूट 2 में जब मैंने आपको बताया था कि हमें पाइथागोरस थ्योरम देखना है क्योंकि राइट एंगल बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि मुझे दो साइड्स का मेजरमेंट मालूम है और मुझे तीसरी साइड चाहिए। दैट्स व्हाई पाइथागोरस थ्योरम इज इन्वॉल्व। यू ऑलरेडी नो दिस, वी आर डिस्कस्ड इन द पार्ट फर्स्ट। सो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूँ बाय पाइथागोरस, मेरा ओ एस स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू मेरा ओ सी स्क्वायर प्लस सी एस स्क्वायर रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, ओ एस स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ओ एस स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो ओ एस विल बी रूट 2। तो बच्चों मुझे ये मिल गया रूट 2। अगर मैं यहाँ से अभी लोकेट करूँ तो मुझे रूट 2 मिलेगा, लेकिन मुझे रूट 2 नहीं चाहिए, मुझे रूट 3 चाहिए। तो क्या करेंगे, अगर मुझे रूट 3 चाहिए तो फिर जो मेरी ये लाइन है ओ एस, बच्चों यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए व्हाट आई एम टेलिंग, कि अगर मुझे रूट 3 चाहिए तो मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा थोड़ा ओ एस को आगे, और मैं डॉट से दिखाऊंगा इसको। तो अब ये लाइन को कंसीडर कीजिए और यहां से जो ओ एस लाइन आपकी है वहां से आप 1 इंच और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, 1 इंच मोर। सो दिस कंसिडर दिस लाइन, जैसे आपने ये लाइन कंसिडर की कि ये परपेंडिकुलर बनाया था ना, इस तरह अब इस लाइन को सीधा कंसिडर कीजिए और यहाँ से इस लाइन से परपेंडिकुलर दिखा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इस लाइन को टी नाम दीजिए, टी। अब आप क्या करोगे, आपका जो राउंडर फिर से पॉइंट ओ पर लाइए और यहाँ तक ले जाइए जहाँ पे आपकी 1 इंच की लाइन पूरी हो रही है। फिर यहाँ से आर्क खींचिए और नीचे तक ले आइए, और ए बी जो आपकी ओरिजिनल लाइन थी जो शुरू में आपने ड्रॉ की थी वहाँ से उसको कट की दीजिए यहाँ तक। ये कट होना चाहिए पूरा आर्क। आई एम रिपीटिंग, देखो मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ, ये कट होना चाहिए, ओके। इसके बाद आप फिर से स्केल उठाइए और ओ टी को ज्वाइन कर दीजिए, ओ टी को। ओके अब देखो यहाँ फिर से एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, फिर से अगेन इट इज अ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल में मैं फिर से बताऊं तो ये जो ओ टी है आपकी हाइपोटेन्यूस साइड है, ये ऑलरेडी रूट 2 है, ये साइड जो दिख रही है ये 1 है। तो फिर से मैं पाइथागोरस का इस्तेमाल करके मैं रूट 3 फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसे आएगा रूट 3, देखो अगेन बाय पाइथागोरस, ये जो आपका है ओ टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ एस स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। तो आपका ओ टी स्क्वायर विल बी, मेरा ओ एस है रूट 2, उसका स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, फिर से मैं ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये रूट 2, अब जो रूट 2 है इसमें से ये और ये उड़ जाएगा तो बचेगा 2 प्लस 1, सो ओ टी स्क्वायर विल बी 3। मुझे ओ टी चाहिए इसलिए रूट 3, तो ये मुझे मिल गया रूट 3। ओके बच्चों, और ये जो रूट 3 और यहाँ पे जो लाइन कट हो रही है रूट 3 मेरा ये हाइपोटेनस ओ टी है,
और उसका जो डेसिमल एक्सपांसन है 1.73, जो रियल मुझे 1.373 दिखाना है नंबर लाइन पर, वो यहाँ पे लोकेट होगा एग्जैक्टली। दिस इज योर 1.73। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इरेशनल नंबर को लोकेट किया नंबर लाइन पर। √3 भी हमने सीखा, √2 इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको सिखाया था। तो इससे रिलेटेड और कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा। मैं √5 और √6 आपको दे रहा हूँ लोकेट करने के लिए नंबर लाइन पर, जो आपका होमवर्क रहेगा √5 एंड √6, और मुझे भेज दीजिए ग्रुप में। आई विल चेक इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू वेरी मच।